میری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خداوند ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی ہے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج تیرے اس مقدس دل میں اکٹھے ہو کر تیری عبادت کی جا سکے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو برکتیں اور نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں۔ تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور ہم آزادی کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں اور تجھے اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو ان کے ساتھ بھی موجود ہے، کیونکہ تو اپنی حمد پر تخت نشین ہوتا ہے۔ اور تیرے بیٹے یسوع نے یہ کہا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند، ہم اسی وعدے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ اس ایمان میں مضبوط ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند، آج کی اس عبادت میں تو ہماری رہنمائی کر۔ خدائے پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدائے پاک روح، ہم حکمت اور دانائی مانگتے ہیں، ہم تیری معموری مانگتے ہیں، تاکہ پاک روح کی معموری کے وسیلے سے ہم لائق طور پر تیری عبادت کر سکیں۔ ہم حمد و ثنا کے لیے بھی تیری مدد مانگتے ہیں، اور خاص طور پر کوائر کے لیے بھی پاک روح کی معموری مانگتے ہیں، تاکہ پاک روح کی معموری میں حمد و ثنا میں کوائر ہماری مؤثر مددگار ہو سکے۔ خداوند، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آج جتنے لوگ اس عبادت میں کسی پریشانی، بیماری یا تکلیف کے ساتھ موجود ہیں، وہ آج اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں، معجزات کو دیکھیں اور شفا اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ خداوند، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، اور جہاں بھی لوگ آج عبادت کے لیے جمع ہیں، ان عبادات سے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند، تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، تاکہ تیرے لوگ دہشت گردی سے اور شر پسند عناصر سے محفوظ ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کے حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 4 گائیں گے، جدو تینوں پکارا میں۔ زبور نمبر 4، زبور نمبر 4، پہلا حصہ، جدو تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا۔
سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ایلڈر امتیاز ولیم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر خداوند کی عبادت کر سکیں۔ اس جگہ کے لیے، ایف سی کالج کے لیے، ایف سی کالج کے سارے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند نے برکت دے اور ان کے وسیلے سے یہ ادارہ اور ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے ملک میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرے اور پاکستان میں اور دنیا میں مسیحوں کو ایک زندہ کلیسیا بنائے تاکہ ان کے وسیلے سے یسوع کی گواہی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے تاکہ ہمارے ملک میں خداوند امن اور سلامتی کو اور سیاسی استحکام کو قائم کرے اور ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ایلڈر امتیاز ولیم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ دعا مانگے۔ خداوند مہربان زندہ آسمانی باپ، بے حد شکر گزار ہیں تو اپنے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ خداوند تو نے اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے تاکہ ہم تیرے حضور جھکیں اور تجھ سے اپنی التجائیں کریں اور اس کا جواب دیں۔ یا یسوع اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند تو نے ہمیں دیا، ہم آزادی سے خداوند تیری عبادت کر رہے ہیں۔ خداوند امن امان کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی خداوند تیرے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کہہ رہے یسوع تو ان کے ساتھ رہنا۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی خداوند دہشت گردی ہے یا جو بھی خداوند معاملات ہے تو جانتا ہے پیارے یسوع، تو رحم کر، فضل کر۔ خاص دعا کرتے ہیں خداوند ایف سی کالج کے لیے جو خداوند تو نے بخشا، دوبارہ خداوند ہمیں دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند اس کو چلا رہے ہیں، ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، عقل فہم عطا کرنا تاکہ خداوند وہ احسن طریقے سے اس کو چلا سکے، ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، ہمارے ساتھ رہنا، بڑی برکات سے مالا مال کرتے رہنا۔ خداوند تیرے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند جو آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کو بھی برکتوں سے مالا مال کرنا، جو تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں خداوند ان کو بھی بڑی برکات سے مالا مال کرنا۔ تیرے بندہ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند جو کہ تیرے کلام کو، تیرے گہرے بھیدوں کو ہمارے لیے کھولنا چاہ رہا ہے، تو پیارے یسوع اس کو برکت دینا، عقل دانش فہم عطا کرنا تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے اور ہم اس کلام کے خداوند وسیلہ سے برکت پائیں۔ سلامتی سے آئے ہیں، اسی طرح خداوند پیارے یسوع سلامتی سے واپس جائیں۔ ہمارے ساتھ رہنا، بڑی برکات سے مالا مال کرنا، یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور گائیں گے 121، اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا۔ زبور نمبر 121، زبور نمبر 121، اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا۔
सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए खुदा की हजूरी में दुआ करें। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है, जिसके नाम में फतह है। तेरे बेटे यीशु के खून के लिए शुक्र करते हैं जिसके खून में शिफा है। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। दुनिया के माबूद तो महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो बोलते हैं, लेकिन अब आप तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा खुदा है। तू देखता है, तू सुनता है, तू जवाब देता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और हम ये जानते हैं कि तू भी हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद, दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, हमारी तमाम ऐसी कमजोरियां और बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते या जिन्हें डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर सके, उन सब को खुदावंद हम तेरी हजूरी में तेरे सामने ले आते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरी आंखें आंख के शोलों की मानत हैं जो सब कुछ देख सकती है। तूने हमें बनाया है खुदावंद, तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है। तू हम में से हर एक पर अपने रहम की नजर कर, ताकि तेरी रहम की नजर से और तेरे छू देने से हम सभी शिफा पाए। खुदावंद, तू रहम कर, हमें छू और शिफा दे। हमारी जिंदगी में बड़े मौजज़े कर, ताकि हमारी जिंदगी में गवाहियां हों, हमारी जिंदगी में तेरी कुदरत का तजर्बा हो, हम लोगों में तेरी कुदरत का भेद बता सके कि तू अपने लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। इसी तरह खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद, हम दुआ करते हैं बहन फोजिया के लिए, मिसेज येरियार्थर के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं बहन शिवा के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए और भाई सादिक के लिए, मिसेस सरवर के लिए और मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदा हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और उनके ख़ानदान के लिए, बेटी कोमल के लिए और मीना के लिए, बेटी सारा आमिर के लिए, डॉक्टर क्रिस्टी साहब के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदा हम दुआ करते हैं बहन शहनाज सफदर के लिए, इसी तरह से बहन नाज वासफ के लिए, बेटी रीबा के लिए, मिसेस जीनत के लिए और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में किसी तकलीफ में मुब्तला हैं उन सब के लिए खुदावंद हम सब मुतफिक हो जाते हैं। एक दिन होकर खुदावंद ये सब नाम जो हमें तेरी हुजूरी में पुकारे इनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू, ताकि तेरा मौजज़ा इन सब की जिंदगी में हो। यीशु के नाम से शिफा का काम हो, यीशु के नाम से हर एक वीकनेस, हर एक बीमारी और कमजोरी जाती रहे। तेरा मौजज़ा हर एक की जिंदगी में हो और हर एक शख्स शिफा पाए। खुदावंद, इस तरह हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। उन्हें छू दे खुदावंद और उन्हें तेरी मेरास मिले, तेरा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में हो। यीशु के नाम से तेरा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में मांगते हैं। खुदावंद, तो हमें से हर एक के साथ उन्हें हिफाजत कर, हमें वबाओं से, कोरोना से, डायरिया से जो आजकल फैला हुआ है खुदावंद तू महफूज रख, यीशु के नाम से, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं तो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। आज इबादत के बाद डॉक्टर फरजान साहब कोचिंग क्लासेस के बारे में बताएंगे। हमारे चर्च के बहुत से बच्चे कोचिंग क्लासेस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो मैट्रिक के बाद प्री कॉलेज समर कोचिंग क्लासेस का आगाज़ कॉलेज में हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन है जो आपने जमा करवानी है और आज उसकी लास्ट डेट भी है। उसके बारे में इबादत के बाद जाइएगा नहीं, इधर रहिएगा। जैसे हम आखिरी गीत जो है वो उसको खिताब पसीद करेंगे तो उसके बाद हम चंद मिनट के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं होगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए डॉक्टर फरजान साहब से कोचिंग क्लासेस के बारे में सुनेंगे। डॉक्टर फरजान साहब चर्च रोटेशन ऑफिस जो है उसको ऑफिशिएट करते हैं और उसके हवाले से बताएंगे कि वो किस तरह से कोचिंग क्लासेस का इनेकाद कर रहे हैं। हमारे चर्च में गुज़श्ता अतवार मैंने अनाउंस किया कि म्यूज़िक क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। इस जुमेरात से, ये गुज़श्ता हफ्ते में जुमेरात से इसका आगाज़ कर चुके हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी एक क्लास हुई है
اور آپ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ ہفتے میں 2 کلاسز ہیں اور ان کی جو فی ہے منتھلی وہ 1800 روپے ہے اور 300 رجسٹریشن ہے. اور یہ بہت ہی نامنل فی میں انتظام کیا گیا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں لوگ میوزک انسٹرومنٹس کو سیکھ سکیں. میوزک انسٹرومنٹ سیکھنا نہ صرف ایک سکل ہے، یہ خداوند کی حمد و ثنا میں بابرکت طریقے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایک بہت اچھا وسیلہ ہے. اس لیے ضرور اپنے بچوں کو میوزک کلاس میں لے کر آئیں تاکہ وہ میوزک کے بارے میں سیکھ سکیں. اور یہ 4 ماہ کا کورس ہے جس میں آپ کے بچوں کو میوزک کے بارے میں سکھایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم اناؤنسمنٹ ہے کہ ہماری پاکستان میں کرسچن کمیونٹی جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں خدا کا شکر ہے ترقی کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے میجورٹی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے. پاکستان میں اور دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جو کہ فری لانسنگ کے حوالے سے کورسز ہیں اور لوگ بہت اس سے ارن کر رہے ہیں. گورنمنٹ پاکستان نے بھی اس میں جو پاکستان میں لوگ ہیں جو جوان ہیں ان کو یہ سکل سکھانے کا انتظام کیا ہے اور یہ فری ہے، آن لائن یہ کورسز ہیں اور یہ 1 جون سے رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے. اور یہ جو آن لائن کورسز ہیں جس میں فری لانسنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ورڈ پریس اور ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر چلانا اور کوئک بک، ڈیجیٹل لٹریسی، آٹو کیڈ، یہ بہت سے ایسے کورسز ہیں جس سے آج کل کی جو یوتھ ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں رہتے ہوئے انٹرنیشنلی بھی دوسرے ممالک سے بھی ارن کر سکتی ہے اور پاکستان سے بھی ارن کر سکتی ہے، اور اس کے لیے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی یوتھ کو اس میں موٹیویٹ کریں تاکہ یہ آن لائن کورسز یہ فری ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ آرگنائزیشنز ہیں جو مل کر یہ کر رہی ہیں. اس کے لیے ضرور اس میں شامل ہو، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس یوتھ کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو ٹریننگ کو لینا چاہتی ہیں، اس کورسز میں شامل ہونا چاہتی ہیں، وہ اپنا نام وقاص کو لکھوائیں. وقاص ہمارے چرچ میں، ہماری کوائر میں ہوتے ہیں، یوتھ میں بھی رہے ہیں اور انہوں نے یہ سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ انٹرنیشنلی مختلف لوگوں کے ساتھ لنک بھی ہیں اور ارن بھی کر رہے ہیں، ایف سی میں جاب بھی کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اس سارے اسکلس کو سیکھا ہے. تو اگر آپ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نام وقاص کو لکھوائیں تاکہ ہم یہ جو رجسٹر کرنے کا پروسیس ہے اس کے بارے میں ایک سیشن رکھ سکیں اور اس میں وقاص جو ہے وہ سبھی کو سکھا سکے گا کہ کس طرح سے رجسٹر ہونا ہے اور کس طرح سے سیکھنا ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں. اس لیے جو بھی اس آن لائن کورسز کو سیکھنا چاہتا ہے، اس میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ آج عبادت کے بعد وقاص سے رابطہ کرے. وقاص سے اپنا چہرہ دکھا دیں، بہت سے لوگ تو آپ کو جانتے ہیں لیکن شاید کچھ نہ جانتے. یہ وقاص ہیں، وقاص یاسر، بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں. تو ضرور آج عبادت کے بعد جو ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں یا پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آن لائن یہ کورسز سیکھیں اور ارن کریں، ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ایک سیشن ہمارے ساتھ کر سکیں تاکہ ہم ان کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں. اس وقت ہم کوائر سے گیت سنیں گے اور یہ ہم اکثر پہلے جو آج گیت گانے جا رہے ہیں وہ پہلے بھی کلیسیا میں گاتے رہے ہیں، تو ضرور ان گیتوں کو آپ شامل ہو کر ساتھ گایا کریں تاکہ یہ ہمارا کلیسیا گیت کا حصہ بنے. میں اکثر دیکھتا ہوں جب کوائر گیت گا رہی ہوتی ہے ہم بہت دفعہ وہ گیت گاتے ہیں لیکن سارے چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ پرفارمنس نہیں ہے، یہ حمد و ثنا کا حصہ ہے اور اس حمد و ثنا کے حصے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں.
मुक़द्दस को सुनने से पहले हम दुआया रूह में ज़बूर 85 गाएंगे। ज़बूर 85 मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, और इसके हम 3 मिसरे गाएंगे, 8वां, 9वां, 10वां। और हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में शामिल होंगे और इस ज़बूर के इख्तिताम के बाद पाक कलाम की तलावत के लिए भी हम खड़े रहेंगे। ज़बूर 85 दूजा हिस्सा मैं गल खुदा दी सुनागा, और इसके 3 मिसरे हम गाएंगे। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। The book of Acts chapter 1 verses 1 to 11। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, थियुफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुदस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना
जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा एक मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक करूँ तू हमारी मदद रहनुमाई कर, ताकि हमारे ख्याल और ध्यान तेरे कलाम की तरफ हों। दुनिया सोचें फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें और आज के कलाम से हम बरकत पाएं, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में से हमने पढ़ा कि लोगों पर जाहिर होते रहे, अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, उन रसूलों को जिन्हें यीशु ने चुना था उन पर जाहिर होते रहे। 40 दिन के बाद एक वाक़या रूनुमा हुआ। सिर्फ लड़के बताएंगे जो यंग यूथ है, उन्होंने मुझे बताना है कि 40 दिन बाद क्या हुआ था। बड़ा आसान से जवाब है वैसे, लेकिन मैंने कहा लड़कों से पूछना, देख ले कोई भी जवान लड़का नहीं बता। यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। अगर कोई टीनेजर्स में से बताता ना तो मुझे और खुशी होती। हाँ जी, ईद सऊद उसी दिन को कहते हैं जिस दिन यीशु ने सऊद फरमाया। तो इससे एक बात का अंदाजा हुआ कि हमारे जवान बेटे जो हैं वो नावाकिफ हैं शायद, या शायद वैसे झिझक रहे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे। लेकिन ये त्यौहार जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसकी तशहीर नहीं है शायद, या हम इसको उसी दिन में जिस दिन ये होता है उस दिन में इसको मनाते नहीं हैं, अतवार वाले दिन या पहले इतवार, क्योंकि ये इतवार के दिन में नहीं आता, तो या तो फिर हम पिछले इतवार उसको मना लेते हैं इबादत के दौरान, या फिर अगले इतवार। इसलिए इसकी इससे ज़्यादा लोग जो है वो वाकिफ़ नहीं हैं। जवान बेटे और बेटियों के लिए ये एक अहम वाक़या है। मसीही खिदमत में, मसीही ईमान में ईद सऊद जो है इसको ईद के तौर पर लोग मनाते हैं। बहुत सी डिनोमिनेशन इसे ईद के तौर पर मनाती हैं, जिस तरह हम ईद वलादतुल मसीह यानी यीशु का जी उठना, और यीशु की पैदाइश, और ईद क़यामतुल मसीह यानी यीशु का जी उठना, ये मनाते हैं। इसी तरह से ईद सऊद यानी यीशु का आसमान पर उठाया जाना, ये भी एक फीस्ट के तौर पर, ईद के तौर पर लोग मनाते हैं, और ये मसीही ईमान का अहम हिस्सा है। इसलिए हम में से हर एक को इस बात को याद रखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन बाद आसमान पर उठाए गए और चले गए, और इसे ईद सऊद के नाम से याद किया जाता है। असेंशन डे इसे इंग्लिश में कहते हैं, असेंशन इसे कहते हैं कि इस दिन यीशु असेंडेड हुए, यानी असेंड हुए, ऊपर उठाए गए। और ख़ास तौर पर आज हम ईद सऊद को ही, जो कि हमारे पिछले हफ्ते में 26 मई के दिन जुमेरात के दिन थी, उसके बारे में सीखेंगे। अमाल की किताब का जो पहला बाब है वो क्योंकि रसूलों के अमाल को बयान करता है, इसलिए इस किताब का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से किया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले जो उन्हें हुक्म दिया और अमाल की किताब में उन्होंने उसको पूरा किया, उसकी वजह से यीशु के आसमान पर उठाए जाने को
मुकद्दस लूका ने मुनासिब समझा कि वो लिखा जाए और उससे आगाज किया जाए इस किताब का। ये ईद सऊद जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये मसीही ईमान का अहम हिस्सा है, जैसा कि मैंने अर्ज किया। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को जमीन कैद न कर सकी, जमीन उस पर कब्जा न रख सकी, और खुदावंद यीशु मसीह जमीन के बंद खोलकर जी उठा। कब्र पर जो पत्थर रखा गया उस पर मोहर लगाई गई। जब वहां पर खातीन पहुंची तो वो पत्थर लुढ़का हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। इसी तरह से आसमान पर यीशु का जाना भी, ये भी उसकी कुदरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले लोगों को, जो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल कर रहे थे कि क्या तू मसीह है, क्या तू खुदा का बेटा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमान पर जाने का जिक्र जो है वो उनके साथ किया। और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले लोगों को और अपने शागिर्दों को भी ये पैगाम दिया। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसके 28वें में लिखा है, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की ये कंटिन्यूटी है। यीशु की जमीनी खिदमत को हम देखते हैं इस दुनिया में, और वो इस दुनिया में आया और उसने कहा कि मैं बाप से निकला हूं, इस दुनिया में आया हूं ताकि इस दुनिया में खुदा के मंसूबे को पूरा करे। और उसका आसमान पर वापस जाना भी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और खुदावंद यीशु मसीह की जो इस दुनिया में निजात का मकसद है, और इस दुनिया को उस गुनाह के बंधन से रहाई देना जो पैदाइश की किताब में हुआ, उससे मुकम्मल तौर पर रहाई देने के लिए यीशु का आसमान पर जाना एक तसलसल है। यीशु का आसमान पर चला जाना यीशु की खिदमत का, यीशु के काम का, यीशु जिस मंसूबे के लिए आया उस मंसूबे का इख्तिताम नहीं है, बल्कि यीशु का आसमान पर चले जाना उसी मंसूबे के पूरा होने का तसलसल है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया। उसका जिंदा होना, उसका आसमान पर उठाया जाना दीदनी था। और शागिर्दों ने इसको देखा। और जब हम इसकी आखिरी आयत आज के हवाले की देखते हैं, 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, तो लिखा है कि 9वीं आयत में ये लिखा है कि ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, यानी उसका आसमान पर जाना दीदनी है, उसका जिंदा होना, उसका मसलूब होना दीदनी है। लोगों ने इसको देखा, उसकी मसलूबियत के वाक़े को लोगों ने देखा, उसके जिंदा होने के बाद वो लोगों पर जाहिर होता रहा और लोगों ने उसको देखा, उसको छुआ, उसकी बातों को सुना। और उसके बाद जब वो आसमान पर गया तो आसमान पर जाते हुए भी उसको देखा है। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसके काम महज मफरूजा या कहानी नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है। और लोगों ने उसको देखा, उसको सुना, उसकी बातों को सुना, उनकी बातों को सीखा, उसके वसीले से अपनी जिंदगी में मौजज़ात लिए। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर होना भी ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है। आज भी यीशु का आसमान पर जिंदा मौजूद होना ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है। यीशु की खिदमत अज़ल से है। जब वो दुनिया की तख्लीक में शामिल हुआ, यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी यीशु की खिदमत, यीशु का काम अज़ल से है और अब तक जारी रहेगा। वो इस दुनिया में जिस्म अख्तियार करके आया और जिस्म की सूरत में ही आसमान पर गया और फिर जिस्म की सूरत में ही वापस आएगा। और उसकी खिदमत, उसका काम, उसका मंसूबा जो निजात का है वो तकमील को पहुंचेगा। और ख़ास तौर पर जब शागिर्द बड़े गमज़दा थे, परेशान थे और परेशानी के साथ आसमान की तरफ देख रहे थे कि अब हमारा क्या बनेगा, ये कह तो गया है कि तुमने बादशाही की मुनादी करनी है, तुमने लोगों को शागिर्द बनाना है, उनको बपतिस्मा देना है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे?
जब तक यीशु मौजूद था उस वक्त तक तो हम सब कुछ कर लेते थे, क्योंकि जहां पर हमसे कुछ नहीं हो पाता था यीशु कर लेता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये कह तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? जब लोग परेशान हैरान थे और खौफ में मुबतला होंगे, मायूस होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया था, जी उठा था और हमारे साथ था, लेकिन अब आसमान पर चला गया है, तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले ही या यीशु के मसलूब होने से पहले ही जो यीशु के दावे हैं, उसमें यीशु ने मुकद्दस मत्ती के इंजील के 26वें बाब की 64वीं आयत में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते हुए देखोगे। यीशु ने दो बातों से अपने शागिर्दों को आगाह किया, जो हम सब ईमानदारों के लिए भी हैं। नंबर 1 कि इब्ने आदम को कादर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे देखोगे, और दूसरा आसमान के बादलों पर आते देखोगे। यानी उसका काम, उसका साथ, उसका हाथ जो अपने लोगों पर है, अपने शागिर्दों पर था और आज भी उस पर ईमान रखने वाले लोगों पर है, वो हमेशा कायम रहेगा। उसकी तरफ से ईमानदारों के लिए मदद, हिफाजत उस वक्त भी थी और आज भी और हमेशा आने वाले ईमानदारों के लिए, जब तक इस दुनिया का इख्तिताम नहीं होता और नए आसमान और नई जमीन का वजूद नहीं आता, खुदावंद यीशु मसीह का साथ, उसकी मदद और उसका हाथ अपने लोगों पर कायम रहेगा। इसीलिए उसने कहा कि तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे देखोगे। और रोमियो के खत के 8वें बाब में इसी बात को पालूस ने ईमानदारों के लिए तसल्ली करार दिया है। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो हौसला है, हमारे लिए जो मजबूती है, वो बयान की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह का बाप के दाहिने हाथ बैठना ईमानदारों के लिए मजबूती का बायस है। रोमियो के नाम के 8वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। यहां पर मसीहों के लिए दिलेरी, स्ट्रेंथ, मजबूती क्या है कि कौन खुदा के बरगजीदों पर नालिश करेगा? कौन खुदा है जो उनको रास्तबाज ठहराता है? कौन है जो मुजरम ठहराएगा? सबसे बड़ा इन ईमानदारों का दुश्मन शैतान है, जिसका काम इल्जाम लगाना है, जो हमें मुजरम ठहराने की कोशिश करता है, जो हम पर इल्जाम लगाता है, जो हमारी निजात के लिए हमारे जहन में शक डालता है, जो खुदा की मोहब्बत के बारे में हमारे दिल में शक पैदा करता है, खुदा की तरफ से जो ईमानदारों की प्रोटेक्शन है उसके बारे में शक पैदा करता है। जब हम शक में मुबतला होते हैं, जब हम अपनी निजात के बारे में शक में मुबतला होते हैं, जब हमारा ये यकीन कमजोर हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का इंतजाम किया है, तो असल में शैतान हमारे दिल को, हमारे जहन को मुजरम ठहरा रहा होता है। लेकिन खुदा अपने बेटे यीशु के वसीले से, जो उसके दाहिने हाथ है, जो हमारी शफायत करता है, उसके वसीले से हमें रास्तबाज ठहराता है। और उसका बाप के दाहिने हाथ होना हमारे रास्तबाज बनने की गारंटी है। हमने रोमियो के खत, हमने गिलितियों का खत, जो इसकी सीरीज हम कर रहे थे, उसमें बार बार यही देखा कि ईमान के वसीले से हम रास्तबाज ठहरते, हम कामों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। यीशु के वसीले से, खुदा के फजल के वसीले से हम रास्तबाज ठहरते हैं। उसके ईमानदारों के रास्तबाज ठहरने में यीशु का बाप के दाहिने हाथ बैठे होना एक अहम रोल प्ले करता है। और रोमियो के खत में पालूस ने यही मजबूती ईमानदारों को दी कि हमें कौन मुजरम ठहरा सकता है, हम पर कौन नालिश कर सकता है, क्योंकि हम खुदा के बरगजीदा हैं। और बरगजीदा कैसे ठहरे हैं? क्योंकि हमारा यीशु, हमारा निजात दहिंदा जिंदा है और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है।
असेंशन जो है ये हमारे लिए होप लेकर आती है। असेंशन जो है ये हमारे लिए स्ट्रेंथ लाती है, ये हमें मजबूत करती है, हमारे ईमान को मजबूत करती है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर गया है और बाप के दाहिने बैठा है वो हमारी शफाअत कर रहा है। और इसी स्ट्रेंथ को, इसी मजबूती को अमाल की किताब के 7वें बाब में हम देखते हैं। स्तिफनस को संसार किया जा रहा था। स्तिफनस कलीसिया का पहला शहीद है। मसीहों में पहला शहीद मुकद्दस स्तिफनस है। अमाल की किताब के 7वें बाब में हम उनका जिक्र पढ़ते हैं। और स्तिफनस को जब संसार किया जा रहा था तो उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। दिस फेथ बिकेम हिज स्ट्रेंथ। जब उसको संसार किया जा रहा था तो यीशु का दाहिने हाथ होने का वादा जो है उसने उसे मजबूत किया। एंड ही वॉज रेडी टू फेस डेथ। वो मौत का सामना करने के लिए तैयार इसलिए हुआ कि उसे ये यकीन था कि उसका यीशु जो है, जिस पर वो ईमान रखता है और जिसकी वो मुनादी कर रहा है, वो बाप के दाहिने हाथ खड़ा और जिंदा है। और यही हमारे लिए भी मजबूती का ऐलान है। यही हमारे लिए मजबूती है कि जब हम इस दुनिया में मुखालफतों को देखते हैं, जब हम इस दुनिया में इंसानों को देखते हैं जो हमें मुजरम ठहराते हैं, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, शैतान हम पर इल्जाम लगाता है, तो हमारी मजबूती, हमारी दिलेरी खुदावंद यीशु मसीह है। इसके साथ ही जो होप है, जो उम्मीद है, वो यीशु का दोबारा आना है। जो उसने अपने अल्फाज में कहा, पहले उसने कहा कि तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक के दाहिनी तरफ देखोगे। दूसरी बात उसने कही कि तुम आसमान के बादलों में उसे आते देखोगे। वो आसमान पर गया ताकि दोबारा से फिर आए। ईमानदारों के लिए यीशु का आसमान पर जाना, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ना तो उसके मंसूबे का खात्मा है, बल्कि ये एक तसलसल है जिसमें यीशु के वसीले से खुदा इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर नया बनाना चाहता है। और यीशु की दूसरी आमद इस दुनिया के नए होने के लिए, नए बन जाने के लिए, इस दुनिया में पाकीज़गी के लिए, गुनाह के मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए जरूरी है। यीशु का दोबारा आना, हम अक्सर जनाजों के दौरान इस पैगाम को सुनते हैं। तसल्लीकियों का पहला खत उसका 4था बाब जो है, ये हमारे अक्सर जनाजों पर मैसेज होता है कि यीशु का दोबारा आना ईमानदारों के जी उठने की उम्मीद भी है। यीशु का दोबारा आना ईमानदारों के खुदा के मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में बादशाही को कायम करने और उसमें शामिल होने की उम्मीद भी है। और मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 12वीं आयत में हमें दोबारा से एक नए आसमान और नई जमीन का जिक्र मिलता है। और उसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह के आने पर अदालत का जो बयान है उसका जिक्र भी मिलता है कि यीशु मसीह जब आएगा तो अदालत करेगा। और खुदा के कलाम में लिखे है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और फिर यीशु ये भी कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। यानी ये सारी बातें इब्तिदा से यीशु के मौजूद होने और इस दुनिया के खात्मे के बाद भी एक नई दुनिया जो होगी उसमें भी यीशु के वजूद होने का बयान करते हैं। इसलिए यीशु का दोबारा आना हमारे लिए एक नई दुनिया की उम्मीद पैदा करता है। एक ऐसी नई दुनिया जिसमें यीशु की बादशाही मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में कायम होगी और ईमानदार उस बादशाही का हिस्सा होंगे। और वो अजीज जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके, और हम भी अगर यीशु के आने तक नहीं होंगे तो हम भी जी उठेंगे। और जो बाकी होंगे तसल्लीकियों के खत में हम देखते हैं, तसल्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4थे बाब में इन बातों को बयान किया गया कि जब यीशु आएगा तो फिर उसके बाद 4थे बाब में क्या होगा। लिखा है 16वें बाब में कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये हमारी उम्मीद है। यीशु का आसमान पर जाना
हमारे लिए एक और उम्मीद को पैदा करता है कि वो फिर से आएगा और यीशु के साथ हम बादशाही में शामिल होंगे। लेकिन यीशु का आसमान पर जाना और उसका दोबारा आना हमारे लिए एक चैलेंज भी लेकर आता है, एक चैलेंज भी है प्रेपरेशन के लिए कि जब यीशु आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, यीशु ने किदों आना है? बड़ा कोरोना के दिनों में तो बहुत ही पूछते थे लोग, कोरोना के दिनों में लोग तैयार हो गए थे, उस ठीक हो रहा है काम तो फिर दोबारा से हमारी तैयारी ज़रा लेट हो रही है। जिन दिनों में कोरोना था उन दिनों में हम तैयार थे कि जो यीशु आया था बस तैयार ही ना से। लेकिन कोरोना ख़त्म हुआ है तो उसके बाद हमारी तैयारी जो है वो भी दोबारा से अब कम होती जा रही है। यीशु के आने पर हमारी जो तैयारी है वो है हमारे लिए एक चैलेंज है। पतरस के खत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुक़द्दस पतरस का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब। और इसी तरह से जो 10 कमवारियों की जो तमसील है वो भी हमारे लिए तैयारी एक चैलेंज देती है। पतरस के नाम पर पतरस का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत और फिर उसके बाद 13वीं और 14वीं आयत। 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। हमें वक्त का नहीं पता, जिन्हें भी टाइम देते जो सारे वो व्यूवरशिप ही लेते हैं फेसबुक पे, इसलिए जो टाइम देता है ना उसकी ना सुने, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को देखें। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। कोरोना के दिनों में किसी ने हफ्ते का टाइम दिया था, किसी ने महीने का टाइम दे दिया कि बस यीशु आने वाला है, लेकिन हमने देखा कि नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर-गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जो असी यह सुनने हैं ना तो फिर कहते ना ही हो गए, क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक काम है। जब ऐसी बातें सुनते हैं ना कि जब यीशु आएगा, खुदावंद का दिन आएगा तो आसमान बड़े शोर-गुल के साथ बर्बाद हो जाएगा, तो फिर रहने दिए तो बड़ा खतरनाक काम है। लेकिन हर ईमानदार की ज़िंदगी में खुदावंद के दोबारा आने का इंतज़ार बड़ा ज़रूरी है कि वो खुदावंद के दोबारा आने के लिए खुद को तैयार भी करे और इंतज़ार भी करे। ये जो ख़तरनाक बातें हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो इस दुनिया में गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यीशु का आना ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है। 11वीं आयत में लिखा है, जब ये सब चीज़ें इसी तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए, और 14वीं आयत में उसका जवाब है, बस ए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। पहले है कि जब यीशु ने इस तरह आना है और इतना खतरनाक काम है तो फिर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। ये 11वीं आयत है। और उसके बाद 14वीं आयत में इसको कंक्लूड करता है, इसका जवाब देता है। पतरस कहता है, पस ए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, यानी तुम इंतजार कर रहे हो यीशु का, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। यानी हमारी जिंदगियां बेदाग और बेऐब होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो इल्ज़ाम हैं, जो खामियां हैं, जो गुनाह हैं, वो हमारी तैयारी को जो यीशु के आने के लिए है उसको कमज़ोर कर देती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, जहाँ दुनिया के लिए अदालत और दुनिया के लिए खौफ का बायस है, ईमानदारों के लिए उम्मीद और बरकत की और खुशी का वक्त है कि ईमानदार जो हैं वो उसकी बादशाही में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ मसीही होना ही काफ़ी नहीं है कि ऐसी मसीही घराने में पैदा हुए, हम मसीही घराने में पैदा हुए तो हमें ज़रूरत नहीं है। यीशु के साथ ज़िंदगी गुजारना, यीशु में ज़िंदगी गुजारना और बेऐब और बेदाग रहने की कोशिश करना, ये बड़ा ज़रूरी है।
और उसके लिए तैयारी बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है। जागते रहो। बार बार वो जो तमसीलें यसू ने खुदा की बादशाही के आने के बारे में दी, उसमें बार बार यसू ने कहा जागते रहो, जागते रहो। और हम में से हर एक को इसी तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। यसू ने कहा कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। इसलिए इस सोच में रहना कि जो आना लगेगा तो पूछ लांगे कि यसू की दो आना लगे, फिर तैयारी भी कर लांगे, ये मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें गुमान भी ना होगा कि जिस घड़ी वो आ जाएगा, जिस घड़ी इब्ने आदम आ जाएगा। बस जागते रहो। फिर मत्ती की इंजील के 25वें बाब में यसू बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, यानी ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, उस लम्हे को भी नहीं जानते कि जब यसू आएगा। इसलिए हमें इसके लिए पहले से तैयार होने की जरूरत है। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि यसू का आसमान पर जाना और उसकी दोबारा से इस दुनिया में आने का जो वादा है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमें ये जिंदा उम्मीद बख्शी है कि हमारा खुदावंद जिंदा है, अब आप तेरे दाहिने हाथ बैठा है और फिर से इस दुनिया में आने वाला है ताकि इस दुनिया की अदालत करे और उस पर ईमान रखने वालों को अपनी बादशाही में शामिल करे। खुदावंद इस बादशाही में शामिल होने के लिए हमें तैयार कर। हमें से हर एक के साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में बेऐब और बेदाग ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करते रहें, ताकि तेरी आमद पर, तेरे बेटे यीशु की आमद पर, उसकी बादशाही में शामिल होने वालों में शामिल हो सकें। यीशु के नाम से आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 126 गाएंगे। गुनाह की सज़ा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनाहगार तू सो समझ ले। गीत नंबर 126, और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 126, गीत नंबर 126, गुनाह की सज़ा जहन्नम।
बात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए ये मौका फराहम किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने तेरी हमदो सना के गीत गाए और तेरे कलाम को सुना और तुझसे मांगा बरकत पाई है। ये हदिया जात खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दी हुई बरकत से तुझे लौटाए हैं, इन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर भी खुशहाली बख्श दे और हमें एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बना और खुदावंद हमारी हिफाजत को निगरानी कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम बरकत पाएं, ईमान में मजबूत रहें और खुदावंद इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर, हमें हादसात से, बीमारियों से, परेशानी से महफूज रख और खुदावंद हमारी कलीसिया में जिन तलबा तालबात के इम्तहानात हो रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे ग्रेड्स में कामयाबी बख्श दे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर से बाहर आ जाए मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो भी नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने तो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आपके लिए को याद करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस सौस से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। इसी तरह खुदावंद हम इस होस्टिया के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इनकी तकदीस कर ताकि इस होस्टिया को खाने और शीरे को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी ज़िंदगी से कर सकें और एक नई ज़िंदगी के साथ तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ से रुखसत हो सके। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया
اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ میں بھی خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو خداوند کی میز پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ Oh
कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप ने मुझे दिया है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है, जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सहारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदा तुमने
ने कहा मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया ना ले। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ काबिल मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शामिल हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यस्सु मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदार अपनी मुबारक जमात है दर हकीकत गठे हुए आज़ा है, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अज़ियत के सवाब की सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप हम नहायत फरोख्ती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफ़ाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त और ताज़ीम और दौलत होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी है। ऐ खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर बाप, हम तेरी हम करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا کے بروے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو خدا باپ کے دہنے بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی قدوس ہے، تو ہی خداوند ہے۔ اے مسیح، تو ہی روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ ہے۔ آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور کو معاف کر۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قابل خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ آمین۔ میری درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں گے، اور میرا خیال پہلے ہم گیت کر لیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ گیت صرف 2 حصے ہوں گے، اور ہم گیت کے بعد دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے، اور چند منٹ کے لیے 3 سے 4 منٹ کے لیے میری درخواست ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ مختصراً آپ جو کوچنگ کلاسز ہیں اس کے بارے میں بتائیں، جو پری کالج سمر کوچنگ کلاسز جو میٹرک سے فارغ ہو رہے ہیں طالب علم اور طلباء، ان کے لیے جو ہے تو وہ بتائیں گے۔ تو ہم آخری گیت ابھی گائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہیں پر موجود ہوں گے چند منٹ کے لیے۔ تشریف رکھیں۔ میری درخواست ہے ڈاکٹر فضل مسیح صاحب سے کہ جو کہ ہمارے ایف سی کالج میں فورمین چرچ ریلیشن آفس جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اسی کے آفس کے تحت ہی جو کرسچن بچے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی آج ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں یقین دلاتا ہوں جتنا مجھے ٹائم دیا گیا اس سے کم ٹائم میں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں پری کالج کوچنگ سمر کلاسز کا یہ وقت ہے۔ ہماری کچھ باصحت قوم بڑی خوبیاں ہیں، بڑی اچھی آتے ہیں، لیکن کچھ کمزوریاں ہیں، اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم سستی کر دیتے ہیں۔ سو آج اس کا کلوزنگ ڈے ہے، سو میں ابھی حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ وہ بچے جو
किसी सुस्ती की वजह से, वो पेरेंट्स जो किसी सुस्ती की वजह से इस प्रोसेस को नहीं कर सके, सो चर्च के बाहर में खड़ा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इसका वे आउट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद मैं पाइसर के ऑफिस में 30 मिनट्स तक होऊंगा, आप वहाँ मुझे मिल सकते हैं। कल मैं अपने ऑफिस में 10 से 11 बजे तक आप लोगों के लिए होऊंगा। इसी इशू को मैं खुद हैंडल करूंगा, मैं अपने ऑफिस में मौजूद होऊंगा। ट्यूसडे को मैं 10 से 12 बजे तक अपने ऑफिस में आप लोगों का इंतज़ार करूंगा कि फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया है तो मैं इस इशू को एड्रेस करूंगा और हम उसको मौका देंगे। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिलूंगा इस वक्त। इसके अलावा हमारी ओपनिंग सेरेमनी 7 जून को होगी और एक तो यहीं पर होगी और लोग तो मौजूद होंगे जिनको हम इनवाइट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होगी, इसकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होगी। सो आप हमें जो है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट बात यह है कि हमारा एक प्रोग्राम है क्रिश्चियन स्टूडेंट स्पोर्ट्स फंड। सो अभी हम मजबूर करेंगे कि सिंगल पेरेंट्स उसमें बच्चों के साथ शामिल हुआ करें। हम पेरेंट्स की अटेंडेंस लगाएंगे और अगर पेरेंट्स नहीं आएंगे तो फिर हम उस प्रोसेस को रोकेंगे, इसलिए कि जब आप बच्चों के सारे कामों में शामिल नहीं होते तो आप लोगों को पूरी तरह पता नहीं चलेगा। और मैं बड़ी संजीदगी के साथ ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एफसी और हमारी कम्युनिटी का बड़ा फासला है। सो इस फासले को कम होना चाहिए। आए हमारे साथ उस मीटिंग में शामिल हो, देखें कि हम करते क्या हैं और अगर कहीं हमारी कमी है तो हमें उसमें एडवाइस करें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और वो तमाम पास्टर साहबान जो ये ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको ये दावा देता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी में भी हमारे साथ शामिल हों, लेकिन कम से कम 2 दिन पहले हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनके लिए अरेंजमेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने 4 मिनट से पहले अपनी बात कर ली है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबान साहब, हमारा आपका शुक्रिया, आपने हमारी ये मुश्किल को आसान किया। कल ही हमारे एक चर्च मेंबर है तो उनको इल्म नहीं था, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को इल्म नहीं हो सका, ऑनलाइन वो देख नहीं सके तो उन्हें पता नहीं था कि हमारे कोचिंग क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की है। मैं परेशान था कब उनका कैसे, मैं सोच रहा था मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने पहले से ही हमारे लिए इंतज़ाम किया कि जो रह गए हैं वो करवा सकते हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम दोबारा से उसी गीत को गाएंगे और इसकी कौन सी ट्रेनिंग वाली, हाँ जी, वो अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ये ऐसे कोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग है और वेब डिज़ाइनिंग और बहुत से ऐसे कोर्सेज जिसके ज़रिए से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों में जिसमें हमें हमारी कम्युनिटी को बेरोज़गारी का सामना है, हमारे जवान बेटे और बेटियां इन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के ज़रिए से सीख सकते हैं और पूरी दुनिया में से अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैं और ये 1 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन है। और इस कोर्सेज में जो हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए हमारी रहनुमाई जो है वो हमारे यहाँ पे ही वकास यासर है, वो करेंगे। और आप में से जो लोग इन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं अपने नाम लिखवा दें वकास को इबादत के बाद, ताकि हम उनका एक इंट्रोडक्टरी सेशन ले सकें और उनको बताया जा सके कि रजिस्टर किस तरह सुने और इन ऑनलाइन कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं। ये आने वाली दुनिया में, ये नई दुनिया जो आजकल बड़ी तरक्की कर रही है तेज़ी के साथ, उसमें हमारे जवान बेटे और बेटियों को रोज़गार के बहुत अच्छे मौके पैदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। अब गीत दोबारा से शुरू करेंगे ताकि हम भाई जा सकें।